Good evening, church, and welcome to our Thursday midweek service. So, let us pray as we begin this service. Let us close our eyes and bow our heads as we pray. Heavenly Father, you alone are worthy of all our praises. You reign in majesty, and you are our Lord. There is none like you, O Lord, in heaven or on earth. You have promised that whenever we call on your name, you will hear us and answer us. Lord, today, this midweek service, we, your children, have gathered to worship in your presence and to sing your praises. Give us a beautiful evening, O Lord, as we worship you. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Let us all stand up and worship the Lord. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name.
and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Heavenly Father, we want to thank You, Lord, for using each one of us for Your glory. We want to thank You, Lord, for guiding us so far. And we want to thank You, Lord, for Your grace. Lord, we pray for our today's service, O Lord. Speak to us through the messages, O Lord. Touch our hearts and touch our lives. Anoint our service, O Lord. Give us a beautiful evening, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. कई बार जो है एक विश्वासी परमेश्वर का सेवा करना चाहता है पूरे दिल से, इन कई बार जो है हमें ना का उत्तर मिलता है परमेश्वर से। हमारे पास बहुत ही अच्छी योजना भी रहती है, लेकिन जो है द्वार उसके लिए नहीं खुलती है। तो बाइबल में जो है मुझे बहुत खुशी है कि बाइबल में इसका उत्तर है, और हर एक चीज़ों का उत्तर है बाइबल में। अगर आप देखेंगे तो हर एक जो भी समस्या से आप गुजरते हो, हर एक चीज़ों का जो है उत्तर है। आज हम देखेंगे कि इसका उत्तर, कि हम देखते हैं कि डेविड जो है कई साल वो सॉल ने उसका छल किया, कई सालों के बाद वो अच्छा राजा बन गया, फिर बहुत ही अच्छा अभी परमेश्वर ने जो है उसे आराम दिया। और डेविड यहाँ पर जो है जब राजा बनने के बाद वो अच्छे महल में रह रहे अभी, और उसकी फिर भी उसकी एक चिंता है कि वो परमेश्वर के लिए जो है कुछ करे, क्योंकि परमेश्वर का वेदी अभी भी तंबू में है। तो डेविड का जो मंशा जो है वो बहुत ही अच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाना चाहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि डेविड का कोई भी इसमें इस सोच में कोई भी खोट नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि डेविड को परमेश्वर जो है मना करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसका उत्तर जो है कभी कभी हमें नहीं मिलते।
आइए आज हम इस वचन में देखेंगे। मैं जो है आपके सामने जो है दूसरा सैमुएल का 7वां अध्याय वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। जब जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे चित्र है और डेविड यहाँ पर सोचते आगे का वचन में आप देखेंगे तो। लेकिन मैं आपका ध्यान और एक वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। कई बार जो है हमें उत्तर नहीं मिलते, क्यों परमेश्वर ना बोलते हैं कई चीज़ों के लिए। तो उसका उत्तर ये है कि हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय और 29वां वचन, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश और वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। याद रखिए दोस्तों, जब परमेश्वर जो है हमें मना करते हैं कई सारी चीज़ों के लिए या फिर द्वार बंद कर देते हैं, तो परमेश्वर जो है फिर हमें परखता भी है। हमारा उस वक्त हमारा रवैया किस तरह रहता है, क्या हम वाकई परमेश्वर से नाराज होते हैं? नहीं, इस तरह नहीं। पर हम डेविड के जीवन से देख सकते हैं। डेविड ने जो है देखा कि उसे मना किया, लेकिन उसके पुत्र सुलेमान को जो है ये मौका मिलने वाला था और ये जानता भी था। तो अभी भी बहुत सारे दुश्मन जो है उसके सामने थे और परमेश्वर ने ये जो है कुछ समय के लिए जो है युद्ध से डेविड को जो है आराम दी थी। लेकिन हम देखते हैं कि और भी दुश्मन थे। परमेश्वर चाहता था कि वो सारे दुश्मन जो है आप वहां से जो है निकल जाए, सबको समस्त निकल जाए, सबका नाश हो जाए, ताकि उसका पुत्र जो है उस मंदिर को बांधने में बहुत ही अच्छा। और इसमें सोलोमन को जो है इसमें पूरी तरह इसमें अपने मन लगाकर काम करना था। इसीलिए जो है परमेश्वर चाहते कि पूरी तरह और जो भी सेना जो थी, जो उसके दुश्मन जो थे, वो सब नाश हो जाए। और परमेश्वर जो है डेविड के द्वारा जो है पूरे सेना उसके दुश्मन से जो है उसे आराम दिलाते। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मना करते हैं तो परमेश्वर हमें किस किस चीज़ों से परखते हैं। आइए हम 3 चीज़ों में देखेंगे परमेश्वर किस तरह ये करते हैं। याद रखिए दोस्तों, परमेश्वर का जो वादा है हमारे प्रति, हम परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी जो है खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। परमेश्वर किस तरह परखते हैं वो ये है कि पहला चीज, क्या हम परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करेंगे क्या, फिर भी परमेश्वर मना करने के बाद भी ना। डेविड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कोई बदलाव नहीं था। क्या हम परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे दिमाग से उससे प्रेम करेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा बात है जब परमेश्वर हमें मना करते हैं तो कई चीज़ों के लिए। दूसरी बात ये है कि क्या आप तब भी आप खुश रहोगे जब आपके जो है ईसाई भाई जो है उनको परमेश्वर आशीष देते हैं, उनको वो सेवा का मौका देते हैं जो आपको नहीं मिला? क्या आप वाकई तब भी खुश रहोगे? मनाते हैं और हमारा भी खुशी इस तरह रहना चाहिए कि हम अपने जो है यीशु मसीह का जो आज्ञा क्या है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से पूरे दिल से प्रेम करना, और अपने नया नियम ये है कि अपने भाई से भी, अपने पड़ोसी भी उसे तुझसे बढ़कर जो है प्रेम करना। क्या हम वो प्रेम वाकई करते हैं क्या? क्योंकि डेविड के लिए बहुत ही अच्छा रुचि रखता है और वो जो है अपने बेटे सुलेमान के लिए भविष्य में कोई भी दुश्मन ना हो तो उसका जो है रास्ता जो है साफ करते हैं। और हम देखते हैं कि क्या वाकई तीसरी बात कि आपने जो है अनुग्रह को, परमेश्वर का अनुग्रह को किस तरह समझा है अब तक। देखते कि क्या वो जो भी हमें वरदान दिया है क्या वाकई उसे तब भी आप इस्तेमाल करोगे? क्योंकि हम देखते हैं कि डेविड जो है एक साधारण चरवा था, परमेश्वर ने उसे कहाँ से कहाँ लेकर आया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलते कि मैं तेरे साथ अब तब भी बना रहूँगा जब ये कार्य तो लगते रहेगा। परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा नहीं, हमें कभी छोड़ेगा नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा आश्वासन है हमारे लिए। और हम देखते हैं कि अगर हम अनुग्रह को देखेंगे तो
निराश का स्वाद भी गायब हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है। हमें अनुग्रह की तरफ देखते रहना चाहिए परमेश्वर का, ताकि जो भी निराशा आई रहती है वो जो है उसका स्वाद निकल जाए हमारे जीवनों से। बंद करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने जो है चेलों को जो है मिशन ट्रिप में भेजा, और वो जब वापस आए उस मिशन यात्रा से, तो चेले लोग जो है बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने आकर तुरंत सब रिपोर्ट्स दी कि परमेश्वर तेरे नाम से जो है दुष्ट आत्मा भी जो है वो भी हमारे अधीन हो गई, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो गए, बहुत ही अच्छा सेवा गया, और हमने ये काम किया वो काम किया। उन्होंने बहुत ही ब्यौरा देने लगे। लेकिन परमेश्वर जो बोलते कि इसमें खुशी बनाओ, क्योंकि जो है तुम्हारा नाम जो है मेमने की किताब में लिखा गया है। कई बार दोस्तों हम जो है हम ज़्यादा जो है इस सेवा के भाव में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसको जो है हम भूल जाते हैं। वाकई परमेश्वर चाहते कि उसने जो हमारे लिए जो काम किया है उसके प्रति जो है हम ज़्यादा आनंदित हो। सभी को जय मसीह की। मैं आज आपसे बात करूंगा कि बाइबल के अंदर दान देने के तरीके के बारे में, पर उससे पहले एक वचन को पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 3 को। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए। बहुत से तरीकों के वचन के अंदर बताया गया है कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को दान करते हैं, पर उनसे भी बढ़कर एक तरीका है जिसको करने से परमेश्वर के सामने दिया गया भेंट, दिया गया बलिदान परमेश्वर ग्रहण करता है और उससे हर्षित होता है। और देना क्या है, सबसे बड़ी बात हम वचन के अंदर देखते हैं तो हम देखेंगे किस प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर को देते हैं। सबसे पहला होता है कि इच्छा पूर्ण देने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से परमेश्वर को देता है। थोड़ा सा पर बहुत अधिक देने वाला व्यक्ति, जिसके पास में थोड़ा होता है परंतु परमेश्वर के सामने वो लेकर आता है उस थोड़े से को, ये जानकर कि परमेश्वर इसको स्वीकार करेगा। फिर हम देखते हैं कि कंजूसी से देने वाला व्यक्ति। उसके बाद बाइबल हमें बताता है कि बलिदान रूप देने वाला व्यक्ति। बहुत से तरीके हैं, जैसे लालचीपन से देने वाला व्यक्ति, और बहुत आयत से और अधिक देने वाला व्यक्ति। और हम देखते हैं कि जो अपनी इच्छा से देता है वह इस बात को याद रखते हुए परमेश्वर को देता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी इच्छाओं को, मेरी मन की सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है। और एक व्यक्ति जो थोड़ा जिसके पास में होता है, जब वो परमेश्वर को देता है तो वो है इस बात को याद करते हुए परमेश्वर को देता है कि जो मेरे पास में थोड़ा है मैं उसको देकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। उसके वचन में लिखी हर एक बात के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा और मुझे अपने विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति है जो अत्यधिक परमेश्वर को देता है और बलिदान पूर्ण परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति। क्या परमेश्वर के बलिदान से भी बड़ी कोई वस्तु हम परमेश्वर को दे सकते हैं? वो उत्तम बलिदान जो परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने लोगों के लिए भेजा, उस यीशु मसीह को जो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरने के लिए इस धरती पर आया, ये उत्तम बलिदान परमेश्वर ने देकर यह सिद्ध किया कि देना कितना अनिवार्य है अगर हम कुछ करना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़कर देखना चाहते हैं, तो देना परमेश्वर के लिए अनिवार्य है। और वचन हमको बताता है कि लेने से देना धन्य है, प्रेरितों का काम अध्याय 20 वचन 35 में। और जब हम देते हैं तो हम आशीषों के द्वारों को अपने लिए खोलते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको बढ़ोतरी देता है और हमें अगुवाई करता है। और वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों के लिए आशीषें उंडेलता है। वचन हमें सिखाता है कि जब तू कुछ दान करे तो तू इस तरीके से दान कर कि तेरा दूसरा हाथ
उस बात को ना जानने पाए जो तू परमेश्वर के लिए करता है। और हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के लिए देना अनिवार्य है। अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो, तो हमें परमेश्वर को देना अनिवार्य है। और हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ना देखना चाहते हैं। हम इसलिए देते हैं क्योंकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत पूरे हो सके। हम इसलिए देते हैं ताकि हम वो दिया गया दान दूसरों तक पहुंचा सकें और परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि परमेश्वर के कार्य में, उसके राज्य में, उसकी सेवकाई में उन्नति हो सके। तो आइए परमेश्वर को, जो परमेश्वर के सामने लेकर आना है, इच्छापूर्ण, बलिदानपूर्ण और आनंदित रूप से दे, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आशीष उंडेल सके और हमको आशीष दे सके। आमीन। I'm not on an ego trip. I'm nothing on my own. I make mistakes. I often slip. I'm just common flesh and bones. But I'll prove someday just what I'm saying, that I'm of a special kind. 'Cause when he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood was on his scarlet robe, and hands stained it crimson red. But his eyes were on the crowd that day. He looked ahead in time, and when he was on the cross, I was on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory makes the heavens shine, oh so unworthy of such blessing. Yet when he was on the cross, I was on his mind. Yes, when he was on the cross, I was on his mind. Good evening, church, and welcome to our midweek service. नमस्ते चर्च, हाय, आपका सबका स्वागत है इस सभा में। Okay, and we already had an amazing service. और बहुत ही अच्छा सभा गुजरे हैं। Okay, beautiful message from Pastor Chandra, और बहुत ही अच्छे संदेश चंद्रा से भी, and also awesome worship. और बहुत ही अच्छा आराधना। So today, for a few minutes, we will speak on prayer.
तो आज हम कुछ समय के लिए जो है प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे and we'll talk about Paul's prayer. और हम पौलुस का प्रार्थना जीवन के बारे में So if you देखेंगे। have your Bibles and turn to Ephesians chapter 3 तो हम जो है इफिसियों का तीसरा अध्याय खोलेंगे and verses 14 to 20. और जो है 14 से 20 तक देखेंगे। I read it in English and then Pastor Chandra will read in Hindi. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with might through the Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes through knowledge, that you may be filled with all fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to his power that works in us. मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में पढ़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूरी और परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Let's pray. Father, we just thank you for this beautiful evenings. Thank you for the word that we heard. Thank you for this worship, Lord. We just pray that you would anoint our service today in a very special way. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, when we think about Apostle Paul's life, जब हम पौलुस के जीवन के बारे में सोचते हैं, okay, beyond he is a great church planter. वो बहुत ही अच्छा चर्च का जो है शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। Okay, he was also a great leader वो बहुत ही अच्छा अगुवा भी था and an amazing pastor. और बहुत ही अच्छा वो पासवान भी Okay, था। these are some of the great qualities of Apostle Paul. ये एक बहुत ही अच्छा जो उत्तम उसका चरित्र बताता है। But what made Apostle Paul to bring all this together? लेकिन पौलुस को इतने सारे खूबियां कैसी मिली? Because he was also a great man of prayer. और क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा प्रार्थना का योद्धा भी था। His prayers were not just bless this person or bless that person. उसका प्रार्थना इस तरह नहीं था कि आशीष दीजिए इस व्यक्ति को, आशीष दीजिए उस व्यक्ति को। Most of his prayers now were not even on material things. और बहुत से प्रार्थना जो है वो इस सांसारिक चीजों के ऊपर भी प्रार्थना But नहीं, his prayers were very deep. लेकिन उसका प्रार्थना बहुत ही गहराई थी। So we'll see that today. तो आज हम वही देखेंगे। So we see the book of Ephesians. तो हम इफिसियों की किताब में देखते हैं, Okay, was a letter written by Paul. ये पौलुस ये खत लिखता है। When Paul ministered in Ephesus many years back. तो पौलुस जब जो है इफिसियों कलीसिया में बहुत साल पहले सेवकाई किया था। Okay, in his second mission trip he visited Ephesus. और दूसरे मिशन यात्रा में जो है वो उस इफिसियों कलीसिया को मिला था। And in his third mission trip, he in fact stayed for more than 2 years. और उसके बाद तीसरी यात्रा के द्वारा जो है वो 3 से ज्यादा साल उधर रुका In था। Acts chapter 18 and Acts chapter 19. और प्रेरितों का जो है प्रेरितों का काम का 18वां और 19वां। Okay, so church was planted by Apostle Paul. तो इस चर्च का शुरुआत जो है पौलुस ने किया था इफिसियों When में। Paul was in Ephesus, जब पौलुस जो है इफिसियों में था, okay, there was a famous and the Greek goddess Artemis was worshipped in that city. और इफिसियों का उस शहर में जो है आर्तेमिस करके बहुत बड़ी जो है उनके भगवान का उन लोग पूजा करते थे। But Paul saw, like Paul preached there, and many got converted into the faith of Jesus Christ. पौलुस ने वहाँ जो है प्रचार किया। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है मसीह पर विश्वास किए। Okay, and many accepted Jesus.
बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए and many also opposed the preaching of Apostle Paul. और बहुत लोगों ने विरोध भी किया पौलुस का प्रचार का। Among them was Demetrius. और उसमें से एक जो है दिमित्रिस था, Okay, he was a silversmith, और वो जो है वो कारीगर था, but he hated because his business went in loss because of people moving to faith in Jesus Christ. वो इसलिए नफरत करता था पौलुस से क्योंकि उसका जो कारोबार जो है मूर्ति का वो ठपने लगा था। There was a point where Apostle Paul had to leave the city because of riots. और एक वक्त आया कि पौलुस को जो है वो शहर छोड़ना पड़ा, बहुत से घटना घट रही थी। Now more than 10 years have passed when Apostle Paul left Ephesus. और बहुत 10 साल से ज्यादा गुजर गए पौलुस वो शहर छोड़कर अभी। And now Paul is writing to his beloved friends in Ephesus. और पौलुस जो है अपने प्रिय मित्र लोगों के लिए खत लिख रहे हैं। In fact, he begins in Ephesians 3:1, Paul, a prisoner in Rome. और जो है वो इस तरह खत लिखते हैं इफिसियों कलीसिया को, पौलुस जो है एक बंदी है यीशु मसीह के Okay, लिए। Paul is arrested in Rome. पौलुस को जो है रोम में गिरफ्तार कर लिया गया Okay, for his faith in Jesus. उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर उसका So वैसे। as he was sitting there in the prison, और जैसे वो उस बंदी गृह में बैठा he है writes a letter to Ephesians to the friends in Ephesus. और वो जो है इफिसियों में जहाँ उसके मित्र है उधर खत लिख रहे हैं। Okay, he wanted to share with the believers the great truth that the Lord taught him about Christ in the prison. और जो है वो बहुत सारे सच्चाई लिख रहे हैं वो उसके दोस्तों को जो प्रभु ने उसको आशीष दी। Okay, among them he wrote about the positional truths in Ephesians 1 and 2. और जो है उसमें से जो है इफिसियों का 1 और 2 में देखते कि हमारा स्थायी जो हमारा पोजिशनल He also speaks about spiritual warfare in Ephesians 6. और इफिसियों का 6 में जो है आत्मिक युद्ध के बारे में भी लिखते हैं। Okay, the book of Ephesians is a very rich book. और इफिसियों की किताब बहुत ही मूल्यवान किताब है। This book also records two amazing prayers of Apostle Paul. और इस किताब में जो है पौलुस का 2 प्रार्थना के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। Okay, number 1 is in Ephesians chapter 1, और पहला जो है इफिसियों का पहला अध्याय में in 15 to 23 verses. और 15 से 23 वचन तक। In the first prayer, the emphasis that Paul makes is enlightenment. और जो है पहला प्रार्थना में जो है वो जो है बढ़ोतरी के बारे में बोलते हैं Enlightenment, that God would open their eyes so that they may see Him. कि परमेश्वर जो है लोगों का आंखें खोले ताकि लोग देख सके। Okay, God would open the eyes of a believer to understand the riches that he has in Christ Jesus. कि एक विश्वासी का जो है आंखें खुल जाए जो उसमें परमेश्वर यीशु मसीह में वो कितना धनी है। So his first prayer was God to open the eyes. तो पहला उसका प्रार्थना ये था कि परमेश्वर लोगों का आंखें खोले। Today we will focus on the second prayer that Paul prayed. तो आज जो है हमने पौलुस ने जो दूसरा प्रार्थना की थी उसके Okay, पहले it's in Ephesians chapter 3 we just read. और जो है ये इफिसियों का तीसरा अध्याय जो अभी हमने पढ़ा है। Okay, here is the emphasis on enablement. और यहाँ पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा वो जोर देते हैं। Okay, it's not worthing the prayers. और जो It's worth like noting this both prayers. और जो है ये दोनों प्रार्थना के बारे में वर्णन करते हैं। Okay, also in Philippians 1 and Colossians 1 also we see the prayers of Apostle Paul. और जो है फिलिपियों का खत में भी और इफिसियों का खत में भी हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में। कोलोसियंस के Okay, remember every time where Apostle Paul is praying, जब भी जो है पौलुस जब प्रार्थना कर रहे हैं his prayers are mostly on the spiritual condition of an inner man. और जो है उसका प्रार्थना जो है आत्मिक जीवन के ऊपर अंदरूनी तरीके से उसके ऊपर ज्यादा प्रार्थना रहती है And not on the material needs of the body. और जो भी इस दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं जो है हमारे शरीर को चाहिए But he prayed for the inner man. तो वो जो है अंदरूनी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। Okay, he didn't talk about he believed that when the inner man is taken care, the outer things will fall in place. पौलुस ऐसा विश्वास करते हैं कि जब अंदरूनी व्यक्ति का जो है ख्याल रखा जाता है तो बाहरी व्यक्ति का ख्याल रखा Like जाएगा। Jesus said, what is inside of your heart would come out of your mouth. क्योंकि यीशु ने कहा है जो भी आपके अंदर है वही आपके मुंह से बाहर आएगा। Okay, somebody said when you go through trials in life, किसी ने तो बोले जब आप परीक्षा से गुजरते हो okay, what's inside of you will reveal outside. और जो भी आपके अंदर है वही बाहर आएगा। Okay, if the word is filled in your heart, अगर जो है परमेश्वर का वचन आपके हृदय में no, भरा है, faith is filled in your heart, आपके जो है हृदय में विश्वास भरी the है, promises are filled in your heart, परमेश्वर
परमेश्वर के वादे भरे आपके You हृदय know, में। you would be patient and you would trust God for everything that happens in your life. आप जो है धीरज रखेंगे और परमेश्वर के भरोसा करेंगे हर एक चीजों के लिए। Certainly, it is not wrong to pray for the physical needs. ये कोई गलत नहीं कि हमें जो सांसारिक चीज में क्या चाहिए उसके लिए प्रार्थना करना। But Paul's prayers emphasis on the spiritual needs. और जो है पौलुस की प्रार्थना इसमें ज्यादा वजन देती है कि अंदरूनी व्यक्ति के बारे में, Okay, because the deeper man is more important. क्योंकि अंदरूनी व्यक्ति जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। Okay, so today we will see some of the prayer points that Apostle Paul prays. तो आज हम कुछ देखेंगे कि जो पौलुस ने जो प्रार्थना की उसके बारे And we में। could have these prayer points in our own personal life. और हम जो है ये प्रार्थना का चीज जो है अपने खुद के जीवन में इस्तेमाल कर And सकते we हैं। could also pray for others this way. और हम इसी तरह जो है दूसरे लोग के लिए भी प्रार्थना कर No, सकते हैं। instead of our prayer, the reason of this message is that we would grow in our prayer life. और ये कारण ये है ये संदेश का कि ताकि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं। Okay, we grow from a prayer like I bless God, you bless this person, that person, but we'll go much deeper in our prayer. और जो है ये प्रार्थना जीवन में जो है इसको आशीष दीजिए उसको आशीष दीजिए उससे बढ़कर जो है बहुत ही गहराई में जाएंगे, So that we could believe God, ताकि हम परमेश्वर के ऊपर पूरी भरोसा that करें God could work in a person's life. कि परमेश्वर जो है उस व्यक्ति के जीवन में काम करे। So we'll see Paul's 4 important things that are mentioned in his prayer. तो आज हम देखेंगे पौलुस का 4 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में प्रार्थना के बारे में Okay, देखेंगे। so let's go number 1 पहली बात in verse 16. और जो है 16वां वचन, He says that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ में पाकर बलवंत होते जाओ। Paul is saying everybody has an Holy Spirit who is a believer. पौल बोलते हैं कि हर एक जो विश्वासी है उनके अंदर पवित्र आत्मा है। Okay, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो he is praying to the believers in Ephesus. और जो है वो प्रार्थना जो है विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना कर रहे And हैं he says that God, through the Holy Spirit, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा will strengthen the inner man. कि उन्हें बलवंत करे जो अंदरूनी व्यक्ति है उसे। Why Paul was praying this kind of prayer? क्यों पौलुस जो है इस तरह का प्रार्थना कर That रहा our है inner man to be strengthened. कि हमारा अंदरूनी व्यक्ति जो है उसे बलवंत मिलता है, Because what we are outside is what we are inside. क्योंकि जो भी हम अंदरूनी तौर से है वही हम बाहरी तौर से लेते हैं। Okay, Paul knows because he is right now in a prison. पौलुस को मालूम है अभी वो बंदी गृह में है। Like if it is not for the inner man, अगर वो अंदरूनी व्यक्ति के लिए नहीं रहेगा तो he would have discouraged by this time. वो जो है निराशा हो जाता He would have था, quitted the ministry. वो जो है सेवकाई भी छोड़ दिया जाता था। But what's amazing is God, like Paul has strengthened his inner man all his life. और क्योंकि पौलुस का खूबी ये है कि वो अंदरूनी व्यक्ति को ज्यादा बलवंत करता ही है। Like and Paul is praying for his believers that God will strengthen the inner man. कि पौलुस बोल रहे कि उसका अंदरूनी व्यक्ति जो है उससे ज्यादा बलवंत बनता ही जाना So that चाहिए, people will face through trials and temptations in life. ताकि जो है लोग जो है मुकाबला कर सके जो भी परीक्षा आती है उस Okay, सबका। but if the inner man is strong, अगर अंदरूनी व्यक्ति जो है बलवंत है they will not quit. वो जो है कभी छोड़ेंगे नहीं सेवकाई That's को। amazing. ये अद्भुत है। And they will never stop following God. और कभी भी वो जो है पीछे नहीं हटेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। Okay, they go through trials and वो temptations, जो है सत्ताओं से जाएंगे, परीक्षा से गुजरेंगे, but they're strong inwardly. लेकिन जो है वो बलवंत है अंदरूनी तौर से। No, in Paul's time in Ephesus, और जो है पौलुस के वक्त में इफिसों में इस there तरह is so होता था। much of idol worship, और वहाँ पर इतनी सारी मूर्ति पूजा and की there's so much of evil. और बहुत सारे जो है दुष्ट काम होता था। Okay, Christians were persecuted for the faith in Christ. ईसाई लोग का छल होता था क्योंकि वो यीशु मसीह के पर विश्वास And करते Paul, थे। in fact, was in the prison because of persecution. और पौलुस खुद जो है वो बंदी गृह में था, उसका वहाँ पर And he could understand as a pastor वो जो एक पासवान होने के नाते वो समझ सकता था and what is going through people's lives. कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा है उसके। You know what? This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Like, that's where God has put pastors. इसीलिए परमेश्वर ने पासवान को रखा Okay, है। we are living in a time और हम ऐसे काल में जी रहे, like there's uncertainty. और कोई भी चीजें जो है उसमें कोई भी
पूरी तरह से स्थायी नहीं है Okay, we don't know what is the future. और हमें मालूम नहीं आगे दिनों में क्या No, होगा there's a pandemic everywhere. और सब जगह तालाबंदी है Okay, we don't know whether we will come again and meet for service. और हमें ये भी मालूम नहीं कि हम एक दूसरे से मिलेंगे क्या सभा में No, we don't know whether we would even like fellowship. और हमें ये भी मालूम नहीं कि हम एक दूसरे से जो है संगति कर We are सकते worried हैं how long this way of online messages will go. हम चिंता कर रहे हैं कि इस तरह ऑनलाइन संदेश किस तरह कितना दिन तक I was जाएगा। speaking to many people this week in our church who lost their jobs. और मैं जो है इस हफ्ते बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे जिनका नौकरी वो खो बैठे Like I don't have answers. और हम मेरे पास उत्तर नहीं है Like we look to God और हम परमेश्वर को देखते हैं and we strengthen the inner man. और जो है हम अपने अंदरूनी व्यक्ति को जो है We उसे pray बलवत्त God करते strengthen the inner हैं। man. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदरूनी व्यक्ति को जो है बलवत्त बना That we will not quit, ताकि हम जो है कभी भी त्याग नहीं but दें will stay in this trial. लेकिन हम जो इस परीक्षा में भी डटे रहेंगे And my prayer for all the church today. और मेरा प्रार्थना ये पूरी कलीसिया के लिए ये रहेगी You know, I don't have all the answers that you're going through. मेरे पास सारे उत्तर नहीं आप जो भी स्थितियों से गुजर No, रहे हैं। I don't have all the money to help you. और मेरे पास वो सारी पैसे भी नहीं कि आपको मदद करूं But I have one thing लेकिन मेरे पास एक चीज that है I could pray for you. कि आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकता That हूँ God will strengthen your inner man कि आप परमेश्वर आपका अंदरूनी व्यक्ति को जो है वो बलवत्त करे so that you will be strong when you go through trials and temptations. ताकि जो है आप एकदम सामर्थ्य में बने रहे जब आप परीक्षा से गुजरेंगे And that's what my prayer is. और यही मेरा प्रार्थना है That's what Paul's prayer is. यही पौलुस का प्रार्थना And है that's the prayer of each one of और us. यही प्रार्थना हम सबका है Like that we would pray to each other ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर that our सकें inner man would be कि strengthened. हमारा अंदरूनी व्यक्ति जो सामर्थ्य पाए The second thing that Paul prays दूसरे प्रार्थना जो पौलुस करते हैं in part A of 17 verse, और 17वां अध्याय का एक पार्ट में that Christ may dwell in your hearts. और कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। Okay, this is very interesting word that Paul is praying. ये बहुत ही अद्भुत जो है वह शब्द है जो पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं Okay, it's not like every believer has the Holy Spirit. Christ already dwells in him. कि वह सबके अंदर पवित्र आत्मा है और मसीह भी उसके अंदर वास करते हैं But the word here, dwell, is very interesting. और यहाँ पर वास करना जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है The Greek word is katakio, और ग्रीक शब्द में कथा कियो कहलाता which है means that Christ would feel comfortable staying in our hearts. उसका मतलब ये कि मसीह को जो है इसमें वो सांत्वना पाते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में रहे He finds peace in our hearts to stay. अगर वो जो है मसीह जो है इसमें शांति पाते हैं कि उसके जीवन में Like बसे Paul is saying, I pray for my believers पौलुस बोलते हैं कि मैं ऐसे विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ that Christ would dwell richly in their hearts. कि परमेश्वर जो है बहुत ही पूरा सामर्थ्य से उसके You अंदर know what बसे this रहे। means? उसका मतलब क्या है मालूम है Like I was thinking about an example of Pastor Prakash and Rosalind in Chandigarh. और मैं पास्टर प्रकाश और रोजलिन चंडीगढ़ में उसके बारे में सोच रहा था Okay, whenever I go to North India, जब भी मैं नॉर्थ इंडिया में जाता and हूँ many of our men go, जब हमारे पुरुष लोग भी जाते हैं okay, and when we stay in their home, और जब हम उनके घर में रहते we हैं feel very comfortable. और हमें वो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ We पर feel like it's our home. हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा ही घर है Okay, we just go into the kitchen. और हम जो है किचन में जाते Okay, हैं we have chai, we have whatever we want to. और जो है हम चाय पीते हैं जो भी We चाहिए वो can खाते enter हैं। into any room. और हम कोई भी रूम में जा सकते हैं There's so much of comfortable. क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर And that's रहने the word Paul is saying here. के। और यही शब्द जो है पौलुस इस्तेमाल कर रहा है Let Christ be comfortable in your hearts. कि परमेश्वर जो है आपके हृदय में जो है वो रहने के लिए उसे अच्छा लगे Like God feels happy to be in your heart. कि परमेश्वर को जो है खुशी लगे कि आपके हृदय No, में Isaiah says, I'm looking for a heart that I could rest. और जो ऐसे ही बोलते कि मैं ऐसा हृदय को देख रहा हूँ जहाँ पर मैं आराम पाऊँ So imagine if Jesus is resting in our और hearts. सोचिए कि यीशु मसीह आपके हृदय में वास कर रहे हैं Imagine the scene when Jesus was resting in the boat. और सोचिए कि यीशु मसीह जो है नाव में आराम कर रहा था Like when Jesus is on the boat, you don't have to fear. और जब यीशु मसीह उस नाव में है तो आपको डरने का जरूरत So नहीं Paul is praying to the believers पौलुस जो है विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना कर that रहे हैं Christ would dwell in your heart, कि परमेश्वर जो है आपके हृदय में बसे that he would feel comfortable. ताकि उन्हें जो है शांति मिले Wow, what a prayer to pray for each other. कि कितना बढ़िया ये प्रार्थना है जो एक दूसरे के लिए Like you प्रार्थना can कर pray, सकते God, हैं कि परमेश्वर that God will richly dwell in Kaveri.
कि परमेश्वर बहुत ऐसे कावेरी के जीवन में बसे रहे, Like God would richly dwell in Bipin's life. और कि परमेश्वर जो है विपिन के जीवन में बहुत ही शांति से And on we could pray like this. और इस तरह जो है हम प्रार्थना करते ही जा These सकते are हैं। deeper prayers. और ये जो है बहुत ही गहराई का प्रार्थना And these are amazing और prayers. ये बहुत ही अद्भुत And प्रार्थना this has great results. और इसमें बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट्स है। And the third prayer that Paul made और तीसरी प्रार्थना पौलुस बोलते हैं in verse 17 part B, और 17 वचन का बी पार्ट में, being rooted and grounded in love. कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, That's amazing. और ये अद्भुत है। Paul is saying, what keeps us going? और पौलुस बोलते हैं हमें आगे हम कैसे जाते रहेंगे, We need to be rooted and grounded in the unconditional love of Jesus और Christ. हमें जो है परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर रहना है। Jesus said in John chapter 13 verse 34 and 35, और यीशु ने जो है यूहन्ना का 13वां अध्याय 33-34 में बोला है, okay, new commandment I give you, नया आज्ञा मैं देता हूँ that you love one another कि आप एक दूसरे से प्रेम करो as I loved you. जैसा मैंने आपसे By प्रेम किया। this you know that I know that you are my disciples. और इससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि तुम मेरे चेले हो। That's amazing. ये अद्भुत है। In these times that we are living, और इस काल में जो हम जी रहे, like we need to be rooted and grounded in God's love. और हमें जो है दिल में जड़ पकड़कर और जो है नींव डालकर रहना है। यीशु Okay, it's amazing. We cannot love somebody with our own heart. और हम अपने हृदय से किसी को प्रेम नहीं Our कर heart सकते। is desperately wicked, Bible says. हमारा हृदय जो है वो क्रूरता है। There's nothing good thing dwells in this old man. हमारे वो हृदय में कोई भी चीज अच्छा चीज नहीं But बसी है। thanks be to God, we have a new spirit. लेकिन परमेश्वर का धन्य हो कि हमारे अंदर नया आत्मा है, Now we have God with us. कि हमारे साथ परमेश्वर है, The God who loves us और unconditionally. जो वो परमेश्वर जो बिना शर्तों के द्वारा And हमसे प्रेम करते He हैं, is given that love in us. और वो प्रेम जो है हमारे अंदर And Jesus said, I have loved you. और परमेश्वर बोल रहे मैं तुमसे If प्रेम you करता हूँ। could take my love, अगर तुम मेरा प्रेम को ले लेते you हो could love others. कि तुम दूसरों से प्रेम कर And when you do that, अगर तुम वैसा करोगे you are truly my disciples. तब तुम सच्चे में मेरे चेले हो। I want to ask you today, मैं आज पूछना चाहता do हूँ, you find difficult to love somebody in your life? क्या आपको जो है मुश्किल होती है किसी को प्रेम करने के लिए आपके जीवन में? You know, did you ever find that problem? क्या ये तकलीफ आपने मुकाबला की है? And we can say that the problem is, and we often say the problem is that person. और हम हमेशा बोलते हैं वो व्यक्ति वो आपके तकलीफ भरा व्यक्ति, Okay, the problem is not that person. और वो तकलीफ ये वो व्यक्ति नहीं है That I am not living in the love of Jesus और Christ. कि मैं जो है परमेश्वर का प्रेम में जो है वास नहीं कर रहा हूँ। If I am dwelling in God's love, अगर मैं परमेश्वर का प्रेम में जी रहा हूँ, when I am rooted and grounded in God's फिर love, मैं जो है जड़ पकड़कर नींव डालकर रह रहा हूँ परमेश्वर का प्रेम में, and I could love anybody. मैं फिर किसी से भी प्रेम कर सकता I could love the wicked person in this world. हूँ और जो है मैं कोई भी क्रूर व्यक्ति से भी प्रेम Okay, प्रेम कर listen सकता to this. 1 Peter 1:21. It's a very nice verse. हूँ। पहला पत्रस 1:21 में देखो बहुत ही Okay. अच्छा वचन है। Okay, remember, Peter really understood what love is. और पत्रस को मालूम पड़ा कि सच्चा प्रेम क्या See, है, this is what he writes. और यही वो लिखता है। Okay, 1 Peter 1 verse 21. और पहला पत्रस 1:21, Okay, who through him believe in God. He's talking about we all believed in God. और पौलुस बोलते हैं उसके द्वारा पीटर बोल रहे हैं उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर का विश्वास करते हो Who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। Then I like verse 22. मैं फिर उसके 22 वचन मुझे Since बहुत you have purified your souls in obeying this truth. अंत जबकि तुम में से भाईचारा और निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मामले में अपने मनों को Okay, through the spirit and sincere love of the brethren. और जो है मनों को पवित्र किया है, Love one another fervently with pure heart. तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण Peter है। is saying, love one another with pure heart. और पौलुस बोलते हैं पवित्र मन से जो है प्रेम करो। You can't love somebody with a pure heart with my own love. और जो है आप किसी से जो है वो पवित्र दिल से मेरे हृदय से प्रेम नहीं कर But सकते। what Peter is saying, you've been saved.
पीटर बोलते हैं तुम्हारा जो उद्धार हुआ है through Jesus Christ who raised from the dead, जो यीशु मसीह के द्वारा जिसने वापस पुनरुत्थान हुए who left heavens and died for you. और वो जो है परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर जो है वो He revealed the greatest love on the cross. वो जो है सबसे बढ़िया प्रेम उस क्रूस के ऊपर And दिखाया that love now indwells in each one of और us. वो प्रेम जो है हम सब के अंदर वास So करती है। Peter is saying it's now easy to love the brethren with that kind of love. और पीटर बोल रहे वो प्रेम से प्रेम करना बहुत आसान है एक And दूसरे that's से। awesome, isn't it? ये बहुत ही अद्भुत Like है it's very easy to love somebody that way. कि ये बहुत ही अच्छे आसान है कि इस तरह से प्रेम करना एक दूसरे से। Like some people really struggle loving people. क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत ही वो तरसते हैं किस तरह प्रेम करूं मैं। Because the problem is not that person, the problem is you're not rooted and grounded in God's love. क्योंकि वो तकलीफ खोट जो है उस व्यक्ति में नहीं, तकलीफ जो है मेरे अंदर है क्योंकि वो प्रेम में मैं वास So नहीं Paul करता। is praying. क्योंकि पौलुस इसलिए प्रार्थना I करता है। like Paul's prayers. मुझे पौलुस का प्रार्थना बहुत ही He says, भाती है God. क्योंकि वो बोलते हैं, परमेश्वर Help, तो मुझे मदद कर, help my people. मेरे लोगों को मदद कर That they'll be rooted and grounded in God's कि वो love. जड़ पकड़ जो है परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, So that they could love each other. ताकि वो एक दूसरे से प्रेम कर With सके, your love, Lord. कि आपके प्रेम से प्रेम कर सके। Wow, this is powerful. और ये बहुत ही Now सामर्थ्य in है। these trials that we go through, और इस जो परीक्षा में हम गुजरते हैं love plays a very important role. और जो है प्रेम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार Like you निभाता है cannot give love to somebody unless you are a receiver of that great love. कि आप जो है एक दूसरे से प्रेम तब तक वो प्रेम से प्रेम नहीं करते तब तक आप खुद वो प्रेम का एहसास नहीं करोगे। And finally, आखिर में okay, the fourth one that Paul prays चौथा बात जो पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं in verse 19, 19 he वचन, says, "You may be filled with the fullness of God." और मसीह के उस प्रेम में तो जान सको और ज्ञान से पूरे सारी परिपूर्ण होते जाओ। Okay, you may be filled with fullness of God. और परिपूर्ण होते जाओ उसके प्रेम में। The fullness is an amazing Greek word, pleroma. परिपूर्ण मतलब वो ग्रीक में प्लेरोमा करके Means you शब्द be है filled with God's nature. कि उसका मतलब परमेश्वर के उस गुण में से वो बढ़ते जा रहे हैं। Okay, like Paul is praying that God, that our believers will grow in your nature. कि पौलुस ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लोग जो है तेरे किरदार में वो जो है बढ़ता ही They है would understand the fullness of God. और वो लोग परिपूर्णता को समझ सके They'll आपका be परमेश्वर। filled with God's nature. और वो जो है आपके गुण में जो है पूरा भरपूरी हो। What is God's nature? परमेश्वर का गुण क्या है? God's nature is grace. और परमेश्वर का गुण क्या है? वो अनुग्रह है। God's nature is love. और परमेश्वर का जो वो जो है प्रेम है। God's nature is और forgiveness. परमेश्वर का गुण ये है माफ करना। God's nature is mercy. परमेश्वर का गुण ये जो है दया करना। God's nature is patience. और जो है धीरज धरना। God's nature is long suffering. और जो है निरंतर उसके पर इंतजार करना। And Paul is saying, पौलुस बोल रहे हैं, Lord, I pray परमेश्वर में प्रार्थना कर that रहा they हूं will grow in the fullness in God's nature. कि परमेश्वर के उस गुण में पूरी तरह बढ़। What an amazing prayer, isn't इतना it? अद्भुत प्रार्थना है। In closing, बंद करने से in पहले verse 20, और जो 20 वचन okay, and he goes on to say, और like, यहाँ पर वो पौलुस बोल रहे हैं, okay, let's read verse 20. 20 वचन पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। So Paul is after praying these prayers, और पौलुस ये सारा प्रार्थना करने के बाद and he gives us a promise. और यहाँ पर वो वादा देता है, And he says, don't worry, when we pray these prayers, वो बोलते कि जब आप ये सब प्रार्थना करोगे, God is able to do it all. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Not only all, न सिर्फ सब कुछ, but he does it abundantly. और बहुत दायित्व से कर सकता है। And not only abundantly, न सिर्फ बहुत दायित्व से, exceedingly, और परिपूर्णता से पूरी तरह। beyond what our mind could think. उससे बढ़कर जो हमारे दिमाग That's सोच सकते amazing. हैं। ये अद्भुत है। When we pray like this, Paul is saying, जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, पौलुस बोलते and हैं, he's saying, I'm praying this way to you. जब हम इस तरह प्रार्थना करते हैं, Paul is saying, I'm praying for you this way. और जब पौलुस बोलते हैं मैं इस तरह प्रार्थना कर रहा When we हूँ, pray, God will do much more than my prayers. और पौलुस बोल रहे हैं मेरे प्रार्थना से बढ़कर वो काम करेगा। So let's get our hands on our spiritual wealth. और जो है चलो हम अपना जो है उस धन के ऊपर हाथ रखेंगे जो आत्मिक है, And pray this way like Paul prayed. और इस तरह जो है प्रार्थना करेंगे जैसे पौलुस ने किया, Okay, that God would strengthen our inner man. कि परमेश्वर जो है बलवंत बनाए हमारे अंदरूनी व्यक्ति को, That we would dwell, like God would dwell richly in our hearts. ताकि जो है परमेश्वर बहुत ऐसे हमारे हृदय
में वास करें, and then we would be grounded and rooted in God's love, और फिर जो है हम जो है नींव डालकर पूरी तरह मजबूती से उसके and we'll प्रेम be में बने filled with the nature of God, और फिर हम परमेश्वरी गुण से जो है पूरी तरह भरपूर because He is able to do all क्योंकि वो बहुत से बहुत कुछ कर सकता है abundantly, और बहुत ऐसे कर सकते हैं exceedingly. और उससे बढ़कर कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Okay, as we continue for some few minutes, we'll pray. और जैसा आगे बढ़ने से पहले हम Okay, और भी प्रार्थना करेंगे we'll pray. Me and Chandra will pray for few people. और हम जो है दोनों मिलकर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना Okay, as करेंगे। God puts in our hearts. जैसा परमेश्वर हमारे हृदय में बोझ डालते हैं, Okay, Lord, we just thank you today. परमेश्वर हम बहुत धन्यवाद Lord, we देते हैं। pray and think about different people. और हम प्रार्थना करते हैं तो सब लोगों के बारे में सोचते हैं लोग। Lord, we pray for Lord Kaveri today. तो आज हम परमेश्वर कावेरी के लिए प्रार्थना Lord, we करते pray हैं। for Bipin today. आज हम विपिन के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। for Pawan Pandey today. पवन पांडे के लिए प्रार्थना Lord, करते we pray for Pawan Yadav हैं। today. पवन यादव के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we think about Manoj Patel today. मनोज पटेल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we also pray for Christopher and Carol. क्रिस्टोफर और कैरन के लिए प्रार्थना Lord, we करते pray for Newton and Jenny today. हैं। न्यूटन और जेनी के लिए प्रार्थना करते Chandra and Kalandi. हैं। चंद्रा और कालिनी के लिए प्रार्थना Lord, we pray for Dolphy today. डॉल्फिन के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray for David Soons. डेविड सोन्स के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। for Sumit today. सुमित के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we think about Lord, we remember Deepika today आज हम दीपिका के लिए भी and the precious kids. और उनके बहुमूल्य बच्चे लोग के लिए Lord, we pray for Aparna today. पढ़ना के लिए भी प्रार्थना Lord, करते for Tushar and his daughter. हैं। और तुषार और उसके और भी उसके बहन के लिए प्रार्थना करते Lord, we also remember today for Suma Shetty and Swati. हैं। और सुमा शेट्टी और स्वाति के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you. Also Sandhya and her husband. संध्या और उसके पति के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, for the Maurya family today. और ये फैमिली के लिए प्रार्थना Lord, करते we हैं। thank you for these precious people. और ये बहुमूल्य लोगों के लिए धन्यवाद Lord, देते thank हैं। you for Ankita, Neelam and Natasha. और अंकिता नीलम और नताशा के लिए प्रार्थना करते Lord, we हैं। thank you, Jesus, for Kiran and Sangeeta. और किरण और संगीता के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for each one of our lives. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय Lord, we also pray for many people who are enrolled themselves in Bible और college. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस बार बाइबल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन किए हैं। Lord, we just pray. और हम प्रार्थना करते हैं Lord, we परमेश्वर pray for all the people. कि सारे उन लोगों Lord, के लिए even Dilip today. दिलीप के लिए भी प्रार्थना करते Lord, we हैं। just pray हम प्रार्थना करते हैं that you परमेश्वर would strengthen the inner man. कि उनका अंदरूनी व्यक्ति को जो है सामर्थ्य की Lord, we परमेश्वर pray that they would grow deeper in their hearts. कि वो परमेश्वर ये भी प्रार्थना करते हैं उनके हृदय में वो बहुत से बढ़ते जाए Lord, that the inner man would be strengthened. कि उनका अंदरूनी व्यक्ति जो है वो जो सामर्थ पाए Lord, even when they go through trials and और temptations, जो है वो जो परीक्षाओं से भी गुजरते हैं Lord, they would be staying, they would not be quitting, और जो है वो स्थिर रहे वो कभी त्यागी नहीं because they knew that the inner man is strengthened. क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उसका अंदरूनी व्यक्ति को जो Lord, we सामर्थ्य also है। pray that you richly dwell in their hearts. और हम ये भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन सारे लोगों के हृदय में वास करें आप That you would feel comfortable to stay in their कि hearts. आपको जो है सचमुच में वो सुख और शांति मिले उनके Lord, हृदय give में। them an assurance that you are with them. और परमेश्वर उन्हें खातरी दीजिए कि आप उनके जीवन में No matter what they're going through right now. और उनके जीवन में क्या बीत रहे तो भी परमेश्वर उनके Lord, that let them feel that you are with them. कि उन्हें एहसास होने दे परमेश्वर कि वो उनके जीवन में है That you will never leave them nor forsake कि them. आप कभी उन्हें छोड़ेंगे नहीं कभी त्यागेंगे Lord, नहीं let them feel comfortable. कि उन्हें जो है सांत्वना मिले आपके Lord, I also pray that they'll be rooted and grounded in your love. और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि वो जो है जड़ पकड़कर नींव में बसा रहे परमेश्वर That they would know and understanding the greatest love of yours. कि उन्हें वो पता चले कि आपका सबसे बड़ा प्रेम God, है। this love can't be found anywhere in this world. और ये प्रेम जो है इस दुनिया में कहीं भी हम नहीं देख सकते But we could see that love in you. और हम वो प्रेम आपके द्वारा ही देख सकते हैं Lord, we just pray that you will ground them in that love. और हम ये भी प्रार्थना करते हैं उनका जो है इस प्रेम में वो एकदम Lord, every बलवान morning पाए। as we get up, that we would be filled with your love. और हर सुबह हम जानेंगे तो ये इस प्रेम में जो है हम उठेंगे And Lord, we also pray that you fill them with your nature, और हम जो है उनके आपके गुण से भी वो बढ़ता जाए ये भी your प्रार्थना करते हैं grace, your forgiveness, कि आपका अनुग्रह आपका माफी Lord, your mercy, आपका दया Lord, patience, और आपके लिए long sufferings. आपकी जो बहुत सारे अनुशासन Lord, we just pray. और हम प्रार्थना करते Lord, हैं we lift up our church और today. हम अपने चर्च को आपके Lord, सामने thank रखते you for हैं each one. They are so precious. धन्यवाद ये सारे बहुमूल्य We लोग also think of Abhijit, Nisha, Sangamitra, Neha. और अभिजीत संगमित्र नेहा
just pray that you continue to bless our church. और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप आशीष देते जाइए Lord, हमारे we चर्च को। pray that you will open up doors of heaven for us. और परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग का द्वार खोलिए Lord, हमारे that चर्च you के would लिए। remove this pandemic from our city. और जो है ये तालाबंदी ये जो बीमारी है हमारे शहर से निकाल लीजिए। Lord, that you would come in this city. कि आपका इस शहर में आना Lord, open up our city for fellowship. और हमारे शहर को खोल दीजिए ताकि हम एक दूसरे से संगति कर सकें। Lord, that we could go back winning souls. कि हम जाए वापस से जो है प्रचार Lord, that we करें could go on with the body of Christ. कि हम जो है पूरे परमेश्वर के That देह we के could साथ fellowship together, कि Father. हम जो है संगति कर सकें। Lord, help us, Lord. परमेश्वर मदद कीजिए Lord, heal our nation today. और हमारे जो देश को भी जो है चंगा Lord, if दीजिए there's any sin among us, forgive us. और कोई भी हमारे अंदर जो पाप है उसे माफ Like कीजिए Nehemiah prayed, जैसे कि नहमीया ने प्रार्थना की Lord, forgive us और परमेश्वर माफ कीजिए and heal our land, और Lord. हमारे भूमि को जो है उसे Lord, restore everything. और सब कुछ पहले जैसे बनाइए Lord, we also pray today. और भी प्रार्थना करते Lord, परमेश्वर give us wisdom these times. और हमें जो बुद्धि और ज्ञान दीजिए Lord, help us to walk with you. और कि हम आपके साथ चले परमेश्वर Lord, to hear from you. कि आपसे सुने परमेश्वर Lord, we thank you. कि हम धन्यवाद देते We परमेश्वर worship you, Lord. आपकी स्तुति और Lord, in Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Lord, we bless you. We should call it close. आइए इस वक्त जो है वो प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। तो बाइबल बोलती है कि जो कोई भी अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह में तो यीशु मसीह उसके जीवन में आकर वो वास करते हैं। और दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई है जो अभी तक विश्वास नहीं किया है तो यीशु मसीह से आपसे इतना ही प्रार्थना करना है कि बोलना है कि यीशु मसीह ने जो है आपके सारे पापों के लिए जो है उन्होंने दाम चुका है कि आपको जो है उसे ग्रहण करना है। अगर ये प्रार्थना आपको करना है तो मेरे पीछे बोलिए, प्रिय यीशु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आप मेरे जीवन में आइए और मेरे सारा पापों को माफ कीजिए। और परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मर गए और उसके बाद 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। ये भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जब भी मैं मरूँ मुझे स्वर्ग में ले लीजिए, मुझे बचाइए परमेश्वर।